we discussed in the entrepreneurship, we discussed about the business plan. What is the meaning of business plan and why business plan is important and what are the various elements we were discussing at that time, right? And we discussed about the OYO company, that the success story of OYO company. In today's class, we are going to understand about the elements of business plan we are going to complete and what are the mistakes which is done by the companies, because of that their business plan failed. So we are going to discuss some points of that. And after that, we are going to understand, or we can say that we are going to study the online platform company, Meesho, the success story of Meesho and how it started and what is the contribution of it in the society and how it provide employment to so many बोल सकते हैं कि homemakers, ठीक है, women, right? So we are going to discuss about that in today's class. Just wait for a sec. Let me enter the students. Okay, so I guess all of you understand that what what we are going to discuss. सबको समझ में आ गया क्या क्या टॉपिक है आज का? Yes, ma'am. Okay, so let's start with the business. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. What is the meaning of business plan? Business plan is basically that how we are going to start the business, what are the finance is required, why the business plan is important for forecasting, for minimizing the risk. And in the business plan, instead of avoiding the mistakes or instead of avoiding the risk, we are describing it, right? So बिजनेस प्लान बनाने का बहुत सारा मकसद होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जॉब की रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, फॉर एवरीथिंग वी रिक्वायर द बिजनेस प्लान. बिफोर स्टार्टिंग और एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस वी रिक्वायर्ड बिजनेस प्लान. सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी डिस्कस्ड दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान, what are the contents, in short what we are describing in the business plan. So first point which we discussed, that is executive summary. So executive summary is not, rather it is a short briefing. It is a briefing of the company in 2 or 3 or 4 pages. It is a very shortcut note, we can say. It is written in the shortcut. Only the information regarding to the funds requirement is basically mentioned. So the entire business plan is basically बोल सकते हैं ना कि हम उसको कंप्रेस करके छोटा सा 1, 2, 3, 4, 5 पेज में ज्यादातर इसको हम लिखते हैं. और इसका मेन रीजन क्या होता है इस बिजनेस प्लान को इतना शॉर्ट में लिखना? क्योंकि वी ऑल नोज दैट बिजनेस प्लान कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 2 or 3 pages. We will make book on that, but because whole readers are not going, सारे readers जो हैं वो सारा का सारा whole material नहीं पढ़ेंगे. All readers are not able to read the whole material. So basically this executive summary is useful for grabbing the attention of the reader. ठीक है. सो अटेंशन ऑफ द रीडर, इसमें बहुत शॉर्टकट छोटी मोटी चीजें लिखी होंगी, जैसे कंपनी का मिशन क्या है, एडवांटेजेस, सेल्स, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वगैरह, ये सारी चीजें इसमें लिखी होंगी. और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिस एग्जीक्यूटिव समरी इज आल्सो हेल्पफुल फॉर टेकिंग द फंड फ्रॉम द बैंक. तो बैंक को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ना अगर अपने समरी को, तो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्लान and according to that they are going to provide us loan. So for taking loan, this is the beneficial, and this is also beneficial in the case of the investors. Like if we want कि हम एंजल इन्वेस्टर्स को लेकर आए, तो हमारे बिजनेस प्लान के बिना तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेंगे. अब जैसे ओला हो गया और उस दिन मैंने ओयो बताया, उन सब में जो भी वेंचर्स थे आपके, जो भी इन्वेस्टर्स थे जिसने आपके वेंचर पे क्या क्या इन्वेस्ट किया, वो विदाउट बिजनेस प्लान तो कभी करेगा ही नहीं. सबको पता है कि बिजनेस के साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है. अगर रिस्क है तो कहीं ना कहीं आपके पैसे डूबने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ये तो है ही. तो बिजनेस प्लान जो है, दिस इज हेल्पफुल फॉर द स्टेक होल्डर्स who have the benefits from your company and who is related with your company. It is beneficial for the people, it is beneficial for the investor, it is beneficial for the bank. So we are, in short, it is beneficial for the whole company.
ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव समरी तो ये हो गया। और जब आप पैसा लेंगे, उधार पे लेते हैं, बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, तो हम कैसे उसको रीपे करेंगे, व्हाट इज द वे टू रीपेमेंट, दैट विल बी आल्सो मेंशन्ड इन द एग्जीक्यूटिव समरी। सो बेसिक यूटिलाइजेशन अगर मैं बोलूं एग्जीक्यूटिव समरी का है, सो इट इज फॉर टेकिंग लोन्स एंड फॉर द इन्वेस्टर इट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया सबको फर्स्ट पॉइंट एग्जीक्यूटिव समरी? Executive summary is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. So next one is description of the business. The business description is not only included the profile of the company, but it will also basically show the picture of the industry, that what kind of industry you are going to operate. So it is going to show the whole picture कि आपका कंपनी आखिर है क्या और वो कैसे रन करेगा। हर एक बिजनेस जो है that is operate, किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, दे आर ऑपरेटिंग विद दैट थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, हमारा ग्रोथ होगा। तो ऑपरेशन हमेशा इफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं कौन? बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस में वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द कंपनीज ऑपरेटिंग एनवायरमेंट एंड इट मे कंसिस्ट ऑल दूस थिंग्स, जो भी चीजें इसमें जरूरत होगी, जैसे नया प्रोडक्ट कौन कौन सा आप लेकर आने वाले हो, न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, लॉन्चिंग का इंफॉर्मेशन, उसके अलावा फिर आपका ट्रेंड, इंडस्ट्री जो आपके ट्रेंड्स को और डायनेमिक को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, किस तरीके से ग्रैब कर रहा है, ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड, कंपनी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जैसे प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्रोडक्ट्स कौन कौन सा लॉन्च करने वाले हो, आगे चल के और कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, कौन कौन से सिटीज में आपके कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, सो इन शॉर्ट इन दिस वी आर गोइंग टू गिव द होल डिस्क्रिप्शन, होल इंफॉर्मेशन अबाउट द company. Description, it means full knowledge and information. For example, if we are purchasing the product and in back side of it we are able to see the labeling, what does it mean? Obviously the information, the same thing is here. Business description, we are going to give the information about the business, ठीक है, to the people, to the reader. And here you are also, if the company is already, मतलब अगर ये कंपनी ऐसा है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नए बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने बिजनेस के साथ टाई अप करके नए बिजनेस को स्टार्ट किया गया है, कई जगह पे रीलॉन्च हुआ है। सो अगर आपने पहले भी कभी कोई कंपनी स्टार्ट किया होगा, तो अगर आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री देना चाहते हैं, तो यू कैन राइट अबाउट दूज इंफॉर्मेशन इन दिस एज वेल। ठीक है, and other topics like research, development programs, procedures, internal operations, how you are operating, all those informations are basically mentioned in the description of the business. So executive summary is a kind of proposal, we can say. आप लोगों ने proposal word सुना है? प्रपोजल वर्ड आप लोगों ने सुना है? प्रपोजल तब हम देते हैं जब आप लोगों ने सुना होगा पीएचडी वगैरह के लिए देयर इज प्रपोजल, प्रपोजल वाला टर्म आप लोगों ने सुना होगा, सुना है ना, कि हम प्रपोजल देते हैं कि भाई हमारा, फिर वो पढ़ा जाता है प्रपोजल को, सिनॉप्सिस भी जिसको कहते हैं, फिर उनको लगता है अच्छा हाँ आप इस एरिया में रिसर्च कर सकते हैं, तो आपको एडमिशन दिया जाता है पीएचडी में। सो प्रपोजल एक तरीके का एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो होता है, वो प्रपोजल होता है बैंकर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि भाई फलना कंपनी खोले हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस में यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब द होल थिंग ऑफ योर बिजनेस। इट इज नॉट अ प्रपोजल बट इट इज अ जनरल इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, राइट? ठीक है, आप एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपनी कंपनी के बारे में पब्लिक को। ठीक है, इन नेक्स्ट वन दैट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सी, if you are selling the product, for example any of the company, if they are selling the product, if we take the e-commerce example, Amazon, they are selling so many products, like they have multiple categories. So in short, either the Amazon is a बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है, इट इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, बट द बेसिकली देयर वर्क इज टू सेल द प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज द मेजर पार्ट अबाउट योर कंपनी, दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर गोइंग टू ऑफर इन द मार्केट, आप क्या चीज मार्केट में ऑफर करने जा रहे हो। ठीक है, इफ देयर इज इफ विल टॉक अबाउट द ग्रो ऐप, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा, शेयर्स की कंपनी एक ग्रो ऐप है, that is an application basically for the share market. share market के लिए grow app है, अगर आप किस किस shares में आप apply मतलब परचेज कर सकते हो, पैसे लगा सकते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है ग्रो ऐप। सो थ्रू दैट यू कैन इन्वेस्ट इन द वेरियस SIPs, म्यूचुअल फंड, और यू कैन से शेयर बाजार, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो देयर वर्क इज बेसिकली सर्विस, राइट, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. सो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिएगा. इस प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में आपका लाने का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड selling such kind of service or goods in the market, selling such kind of product in the market, right? Or you have to tell that what are the features that your product have, मतलब आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर है जो बाकी कंपनी जो दे रहे हैं प्रोडक्ट उनमें वो नहीं है. So you have to describe the differentiation about your product which is not available in the another companies. What make a difference? Like if we'll start studying the success story of Meesho, the difference between the Meesho and the other company, what it is. Like Flipkart, Amazon, they are selling product to the consumers, but Meesho, there you can become the reseller as well, right? So this option is not available in Amazon. So what different thing you are basically providing to the consumer? What is the reason behind doing such kind of event, such kind of product को लाने का आपका reason क्या है? Did you do the consumer behavior analysis? Did you engage in the research program before showing or before introducing such kind of product? तो इन सारी चीजों का description you are going to write under this description of product and services. What can be the product life cycle? आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो कितने दिन तक चल सकता है, और पीएलसी से आप क्या समझते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट आपके प्रोडक्ट के साथ कैसे क्या है. तो all those things you are basically going to add in this section, description of products and or services. क्लियर हो गई बात, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay. Now the term is, what is the difference aspect of the business plan? See, all these works are related with the company. Company का basics है ये, executive summary, description of the company and what product or service you are going to provide. Now the other aspects we have to consider in the business plan. What are those points? Just I'm going to elaborate it. The different aspect of business plan में आएगा human resource aspect of business plan. See, who are human? We considering human resource as an employee of the company, right? Company में जो employee हैं, जो काम कर रहे हैं, जो managers हैं, executives हैं, the clerks हैं, all these considered as a human resource for the company. Clear हो गई बात, समझ में आया सबको यहाँ तक? तो अब यहाँ ह्यूमन एस्पेक्ट से हम समझते हैं क्या है. अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कौन मैनेज करता है? एचआर का ये जो डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, or it is a department basically in every company which is responsible for recruiting the employees for the job. यहां तक समझ में आया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट होता है कंपनी में जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपको जॉब प्रोवाइड करने के लिए. जो जॉब आपको प्रोवाइड करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, आपका टेस्ट लेना, ये सारी चीजों का काम जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेट दे आर हैंडलिंग. ठीक है, सो कहीं पर भी वर्ड ह्यूमन रिसोर्स आएगा समझ जाइएगा इट इज रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज. ठीक है, सो इन एवरी कंपनी how it will work. See, whatever product you are going to offer, कोई भी प्रोडक्ट ऑफर करना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने मास्क की कंपनी ओपन कर ली, ठीक है, अब भाई मास्क बनाना ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं समझ गई. कितने दिन तक, मतलब जब तक कोविड है तब तक तो सेल होगा ही होगा, ये भी मेरे दिमाग में है. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो लॉन्ग हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट भी हो सकता है, दैट कैन डिपेंड. तो ये सारी चीजें तो बेसिक समझ ली. अब भाई जो मास्क बनवाना है जिनसे मुझे, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, तो डू यू थिंक माय बिजनेस विल वर्क? आपको लग रहा है कि इफ आई विल नॉट गेट द मास्क जो है वो प्रॉपरली बन के रेडी नहीं हो रहा, तो आपको क्या लग रहा है कि वो आपको क्या लगता है कि मुझे फायदा होगा ये कंपनी चलाने पर भी, बल्कि मेरा बिजनेस प्लान बिल्कुल सेट है तब भी? इफ द वर्कर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, डू यू थिंक दैट द बिजनेस प्लान वर्क? मैम चलेगा क्या? नहीं चलेगा? नो मैम. So with the other perspective, human resource is also required in every company. ठीक है, तो the qualities of the company management, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसका इंटरनल ऑपरेशन, डे टू डे एक्टिविटीज कैसे रन कर रहा है, that is totally dependent upon the employees, right? सही बात है, इंटरनल एम्प्लॉइज पे डिपेंडेंट होगा.
भाई ऑफिस में मैनेजर है हु इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, पर मैनेजमेंट बहुत ढीला है, बहुत ज्यादा डिले हो रही है चीजों में। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ढीले का मतलब क्या है, द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट अप टू द मार्क, एक तरीके से, है ना। तो जो क्वालिटी है कंपनी मैनेजमेट का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस प्लान में, ठीक है। मतलब बिजनेस प्लान में आपके कंपनी मैनेजमेंट का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है, और बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट टीम क्वालिटी मैनेजमेंट टीम कैन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस प्लान। यहां पर इस सेक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी। यहां पर दिस सेक्शन प्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी हैव, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस्ड पीपल, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट, ठीक है। इवन वी आर गोइंग टू राइट ऑल द रिलेवेंस एक्सपीरियंस। कभी भी आप किसी भी कॉलेज के साइट को ओपन करना, यू विल सी दैट द फैकल्टीज एंड टीचर्स आर बेसिकली you are able to see the pictures of the people and they are basically responsible for providing the qualitative teaching, right? So यहाँ पर भी आप वही सारी चीजों को देखोगे कि यहाँ इस वाले सेक्शन में कंपनी क्या करेगी, अपने कंपनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, मतलब ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी लोग होंगे, उनके एक्सपीरियंस, उनके अचीवमेंट, उनका परफॉर्मेंस, हर चीज के बारे में उसमें मेंशन होगा। उसके अलावा की एरियाज क्या है आपके मैनेजमेंट का, ठीक है। प्लानिंग में प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल क्या है, लीडरशिप किस तरीके से आप डिस्क्राइब कर रहे हो। तो ये सारे की सारी चीजें जो एक ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है, कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वी आर गोइंग टू बेसिकली राइट ऑल दोस थिंग्स इन द ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस प्लान। आ गई बात समझ में? क्योंकि प्लानिंग भी अगर कोई करता है तो इन शॉर्ट we have a particular job experienced people, मतलब ऐसे लोग होने चाहिए, 3 4 5 कोई भी है। अगर आप एग्जाम्पल में देखोगे किसी भी स्टार्टअप में को, तो उसमें फाउंडर और को फाउंडर की स्किल, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनका पास्ट एक्सपीरियंस, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज रिटन ऑन दैट। ट्रू और नॉट? सही बात है। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट में हमें ये दिखाना है कि हमारा जो ये सेक्शन दिखाएगा कि कंपनी मैनेजमेंट टीम कैसी है, उनका एक्सपीरियंस, उनका अचीवमेंट क्या है, उनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। और स्टार्टअप्स में आपके पास बहुत सारे लोग एक टाइम पे तो होते नहीं है, रिलेटेड 1 2 या 4 5 हार्डली अगर हैं तो, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान में मेंशन करना है। Now the next one is marketing aspects of business plan. So here we are going to describe about the marketing strategy. ठीक है, how we are going to sell the product, how we are going to do the target market, what kind of the promotional scenario, promotional जो हमारे पास एक्टिविटीज है, हम कौन कौन सा अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप सारे मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, पोटेंशियल मार्केट क्या है, आपके कस्टमर्स कौन हो सकते हैं, कौन से एरिया में भी आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे, कौन से एरिया में जो अभी अनफुलफिल नीड है, जो मतलब नीड को पूरा नहीं किया गया है। तो ये सारे के सारे मतलब यहाँ पर एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान आप बनाओगे कि ताकि आप प्रॉपरली मेथड्स और एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। सो हियर इन दिस aspect we are basically going to describe about the marketing plan, marketing strategy. In marketing strategy we are going to understand the whole P, like distribution कैसे करेंगे, प्राइस क्या रखेंगे, फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज क्या करेंगे। तो ये सारे के सारे, उसके अलावा एसटीपी मॉडल वी आर गोइंग टू यूज हियर, सेगमेंटेशन कैसे करेंगे, टारगेटिंग कैसे करेंगे, पोजिशनिंग कैसे करेंगे, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू राइट इन द मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस प्लान। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Okay, next one is the production aspects of the business plan. In the production aspect we are basically going to involve the manufacturing section of the business, like कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम प्रोडक्ट को, ठीक है। सेल्स और मार्केटिंग प्लान पे टोटली बेस्ड होता है आपका प्रोडक्शन। लाइक आपको पता है कि अगर आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट का सेल बहुत कम हो गया है तो प्रोडक्शन हाई कीजिएगा तो लॉस और हो जाएगा, होगा कि नहीं। सेल कम हो गया है तो प्रोडक्शन भी कम करना है, ट्रू। डिमांड बढ़ गया है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा करना है। तो प्रोडक्शन बेसिकली इज दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द सेल्स एंड मार्केट,
ठीक है, सेल्स और मार्केट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर प्रोडक्शन जो है प्लान है वो कवर करेगा प्रोडक्शन के ऑप्शंस को, ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्ट करे, डिजायर्ड मिक्स ऑफ प्रोडक्ट को, और प्रोडक्शन प्लान कंटेन करेगा बजटिंग को, कॉस्ट ऑफ लेबर क्या है, आपका मटेरियल कितना लग रहा है, रॉ मटेरियल वगैरह क्या लगेगा आपका, और ये सारी चीजें। अगर आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स रिलेटेड काम नहीं कर रहे हो, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, तो अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप सर्विस डेवलपमेंट, न्यू सर्विस डेवलपमेंट में इंगेज हो जाओगे। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपका डिपार्टमेंट, जो भी जिस तरीके के प्रोडक्ट के साथ आप डील करो, गुड्स के साथ या सर्विस के साथ, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक द प्रोडक्शन बोल सकते हैं ना कि प्लानिंग, कि किस तरीके से प्रोडक्शन करना है। सो बिजनेस प्लान में आपको प्रोडक्शन प्लान को भी क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। Next one is financial aspects of business plan. So in short, what I am telling right now, मैं आपको जो बता रही हूँ ध्यान दीजिएगा कि एग्जीक्यूटिव समरी हमने बनाना है कि ओवरऑल आपका बिजनेस क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, और इसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना है कंपनी, नॉट डिस्क्रिप्शन इन एग्जीक्यूटिव समरी, ओनली ऑब्जेक्टिव एंड मिशन ऑफ योर कंपनी, तो दैट यू हैव टू राइट इन executive summary. In the description of business, you have to write everything about the business model, about the product, about the service, everything in the descriptive manner. And description of product and services, like what kind of product you are going to basically offered in the market. And in the other aspect, they are different. अगर हम business plan का aspect देखें तो अलग अलग वे, अलग अलग चीजों के लिए भी business plan बनाया जाता है। आपके business plan में इनको भी include किया जाता है, human resource aspect को कि आपका कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मार्केटिंग एस्पेक्ट को कि आपने कंपनी में किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करना है, प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स को कि आप प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रोड्यूस करिएगा, ठीक है, आप रॉ मटेरियल वगैरह क्या क्या चीजें कितना यूज कीजिएगा, कॉस्ट क्या वगैरह आएगा, तो ये सारी चीजें। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान में आप बिल्कुल फाइनेंस के ऊपर फोकस कीजिएगा, कैश फ्लो रिक्वायरमेंट देखिएगा, लोन को देखिएगा, उसके अलावा आप देखिएगा कि कब आप प्रीपेमेंट कर सकते हैं लोन को, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, दैट विल कम्स अंडर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस plan. After understanding this, we are going to move toward the technical aspects of the business plan. See, nowadays, most of the company that are totally based on the technology, or we can say they are utilizing technology a lot, right? If we'll see कि अगर आज के टाइम पे हर एक कंपनी लगभग अपनी ऐप को लॉन्च कर चुकी है, जिस ऐप के थ्रू यू आर एबल टू परचेज द प्रोडक्ट, यू आर एबल टू, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्विगी, that is which kind of company that is, basically they are the food delivery company, ठीक है, so we are able to give the order through that. So how much your company, your venture is basically based on the technology, and what kind of technology your company is using, it is a latest, it is a traditional or conventional, ठीक है, so we can say that the level of your success is described according to the technical aspects you have. Like in the market we can see that everyone is using the new and innovative technology, and if we will, either we are starting a new business, but agar hamari technology old hogi, so we are not able to get success, right? So in this technical aspects of the business plan, the new venture have to get the information related to the technology present in the market, as well as we have to analyze that what the competitors are using, what kind of technology, right? And entrepreneur should gather all the information related to the product development and the technological development, ठीक है? So in the technical aspects, we are basically going to think about the technology for our business, right? Clear हो गया सबको? समझ में आया? Aspect of the business plan. So here we are already talk about the requirement of the business plan for the human resource, for marketing, for production, for the technical and aspects, for financial aspects. Here we are going to talk about the social aspects of the business plan. Okay, so enterprises have even they have responsibility to fulfill the social responsibility. They have obligations. उनका कुछ उत्तरदायित्व है कि जब सोसाइटी से आप कुछ ले रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ वापस भी उनको करना है. So इसीलिए so many companies are already engaged in the CSR, corporate social responsibility. You all heard about this point. सुना है तुम लोगों ने CSR, corporate social responsibility? जैसे ITC है, Imperial Tobacco Company जो है, they basically established the e-Chopal in the rural areas, right?
and Yes, ma'am. Yes, ma'am. they also established Chopal Sagar in so many areas. So basically they Rural, want to develop the rural areas. क्या develop करना चाहते हैं वो? rural areas, rural Rural, के yes. लिए कुछ करना चाहते हैं. हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वैसे ही पावर शक्ति जो आपका था ये एक मिनट, प्रोजेक्ट शक्ति, it's not power shakti, it's project shakti. They launched for giving the employment for the rural women. यानी rural women किस तरीके से उनको employment मिले और लोगों के बीच में उनके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो. तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं. बहुत सारी कंपनी में से आप लोगों ने टाटा ग्रुप का नाम आए दिन आप सुनते हो कि उन्होंने इतना लाख रुपया, इतना करोड़, मतलब इट्स नॉट इन, मतलब इतने करोड़ रुपीस उन्होंने डोनेट किया फॉर the COVID victims, right? So basically, in short, why they are doing so? Because they are earning from the society. From whom they are earning? They are earning from the people. If they are selling the car, who are purchasing that? Consumers. So in short, where the consumers are living? In the society. So in short, whatever we are taking, that is from the society. So it's our responsibility to give something back to the सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करें. आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने कैंप, वैक्सीनेशन कैंप लगाया. किसके लिए? कोविड के वैक्सीनेशन के लिए. सो ये करना जरूरी था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग उनका मेन गोल होता है, खासकर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं. लेकिन आप जब CSR करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बेसिकली फुलफिल करते हैं, तो आपकी कंपनी का इमेज बेहतर होता है. सोशल तरीके से लोग आपके कंपनी को रिस्पेक्ट देते हैं. ठीक है, आपकी कंपनी के लिए लॉयल बनते हैं. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ऑल्सो डन बाय सो मेनी कंपनीज. तो यहां पर वही बात की जा रही है कि सोशल एस्पेक्ट में बिजनेस प्लान का क्या यूटिलाइजेशन है. सो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एंटरप्राइज टू fulfill the social responsibility and must show the social awareness. Social awareness का मतलब क्या होता है? समाज में जागरूकता. Social awareness in the project evaluation, implementation. तो यहाँ पर आपके social aspect के भी point of view से it is required to basically provide the business plan or make the business plan and include those areas also like the social रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया. ठीक है, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कहाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए. खैर स्टार्टिंग में तो बिजनेस उतना ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाता है, बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली बिजनेस प्लान के ये सारे आपके एलिमेंट्स हो गए. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान. अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस है कि व्हाई सम ऑफ द बिजनेस प्लान फेल्स. बहुत सारे बिजनेस प्लान फेल क्यों हो जाते हैं? What is the reason behind it? The common pitfall to be avoided. क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए? क्यों बहुत सारे बिजनेस प्लान फेल हो जाते हैं? सी, बिजनेस प्लान अगर आपने प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया और प्रिपेयर करने के बाद उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया, कहाँ मिस्टेक्स है वो सब आपने जब नहीं देखा, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ कॉमन फेलियर फैक्टर्स मतलब आपके जो बिजनेस है वो फेल हो जाते हैं. और कुछ कॉमन फैक्टर्स क्या है बिजनेस के फेल होने पे, वो सारी चीज मैं अभी आपको बताती हूँ. द फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स आर नॉट डिफाइंड. इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर सेलिंग. ठीक है, इफ देयर इज अ half information, if there is a lack of information about the product, then in that case the people are not going to aware about your product and they are not able to trust on your product. ठीक है, so the organization is not able to describe about its product in a good way or in the proper manner. This calls for a good knowledge base. इसीलिए आपको हमेशा एक प्रॉपरली इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्वे करना है. किसको? लोगों को बिजनेस प्लान में मेंशन करना है. ठीक है, नेक्स्ट है क्या? अनरीजनेबल गोल सेट बाय द एंटरप्रेन्योर्स, जिसके बारे में मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था कि ऐसे कोई गोल सेट मत करो जो अनरियलिस्टिक हो. अब जैसे एग्जांपल में आज मैंने ये मास्क लॉन्च किया और मैं कल उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा 1 करोड़ मास्क सेल हो जाए. पॉसिबल है क्या? पॉसिबिलिटी है? नो, because this is why it is impossible, because I am
I am in my own world. I cannot able to see the realistic environment that there are so many competitors. Earlier, the local companies were making a mask. Nowadays, we can see that the so many like Jockey, Wildcraft, so many companies are making masks. So I am not analyzing those things, and I am making the unrealistic goal for my organization. In that situation, you are not able to achieve it, right? And if you will try to do it and forcefully, it does not happen, right? So unreasonable goal, और जो चीज का कोई रिलेवेंस ना हो वैसे गोल एंटरप्रेन्योर जब सेट कर लेते हैं तो उस केस में आपका बिजनेस फेल हो जाता है. आई बात समझ में? Everyone? Yes, ma'am. Okay. Everyone turn on your camera. कैमरा टर्न ऑन कीजिए. हाँ. नेक्स्ट है कि लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस बाय एंटरप्रेन्योर एंड हिज टीम. अब जब आप एक एंटरप्रेन्योर हो और जब आप कुछ स्टार्ट करो, अपनी एंटरप्राइज को स्टैब्लिश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? कमिटमेंट नहीं कर रहे हो. मतलब यू आर नॉट कमिटिंग, यू आर नॉट गिविंग, यू आर नॉट बेसिकली मेकिंग प्रोमिसेस विद द कंज्यूमर्स. एंड आप लोगों को पता होगा कि जितना भी एडवर्टीजमेंट होता है वो कुछ ना कुछ आपसे प्रॉमिस करता है. लाइक इफ यू विल गेट इट, यू विल गेट द बेटर क्वालिटी. इफ यू विल गेट इट, you will become beautiful. So many things. Some are the very vague advertisement that is done by the company even. I am saying that. But in somehow the companies are giving the commitment that our product quality will never going to dissatisfy you. आपको dissatisfactory वाली situation पे नहीं पहुंचाएगी. आप satisfied रहिएगा product को use करके. तो ये commitment जो एक होना चाहिए कंपनी की तरफ से लोगों के लिए, consumers के लिए, वो चीजों की कई बार कमी होती है आपके बिजनेस प्लान में. यू आर नॉट कमिटिंग, यू आर नॉट गिविंग द एश्योरेंस अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स. सो इन दैट सिचुएशन इट माइट बी पॉसिबल द कंज्यूमर्स आर नॉट very much बोल सकते हैं ना concerned toward your product. So lack of commitment to the new enterprises by the entrepreneurs and his team. They are not in the commitment position. Next one is inexperience and going trial and error methods. मतलब जो लोग बेसिकली आप बिजनेस प्लान कर रहे हो, बना रहे हो, वो इसीलिए भी गड़बड़ हो सकता है क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस है that is not suitable for doing such kind of business. It might be possible that the people are starting the business, but they are not aware about so many things because their experience are not like that. The people have a sound experience. They are able to analyze the possibility, pros and cons of the every business, right? So maybe there is a reason of the inexperience. फिर बोल सकते हैं कि जो एक्सपर्टीज जो चाहिए वो नहीं है, या फिर आप ट्रायल एरर मेथड वाले चक्कर में ही पड़े हो. ट्रायल एरर मेथड्स में आप क्या करोगे? ट्राई करोगे, फिर गलती होगा, फिर ट्राई करोगे, फिर गलती होगा, तो ग्रोथ कब करोगे? इसी चीज में रह जाओगे. सो somehow because of the lack of the experience, this is also one of the reason for the business failure. इसके अलावा there is a no proper SWOT analysis. SWOT का मतलब पता है सबको? SWOT analysis क्या होता है? नहीं पता है? Strength, weakness, opportunities and threat. This is known as SWOT analysis. कोई भी बिजनेस शुरू करिएगा तो आप देखिएगा कि आपकी कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है. जैसे एग्जांपल के लिए, इफ द कंपनी इज स्टार्टेड लाइक आई स्टार्टेड सेलिंग दिस मास्क ऑनलाइन, सो इट माइट बी माय स्ट्रेंथ. व्हाई? बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज यूटिलाइज्ड नाउअडेज अ लॉट. ठीक है, द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द ऑनलाइन मोड. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट दिस इज माय strength. Now the question is opportunity. What can be my opportunity? Like I started selling my mask to the international market, so that can be my opportunity कि मैंने यहाँ से सेल करना शुरू कर दिया out of the boundary or the outside from our country. ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में I started selling my product. इतना अच्छा है ये प्रोडक्ट है मास्क, for example. So this can be my opportunity. Now the next one is weakness. Weakness क्या हो सकता है मेरी कंपनी का? Like what I am selling, like मैं मास्क सेल कर रही हूँ, या मैं बहुत सारी कंपनी सेल कर रही हैं. ठीक है, so I am not selling the innovative product, but I am selling those product which is already there in the market. ठीक है, तो that can be my weakness. What can be the threat?
मतलब थ्रेट का मतलब क्या चीज है जिससे मुझे केयरफुल रहना चाहिए, क्या चीज मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, लॉस करवा सकती है। तो कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजी हो सकता है, कॉम्पिटिटर मेरे से बेहतर मास्क और बोल सकते हैं कि ऑनलाइन मोड में आराम से सेल कर रहे हो। तो दीज आर द स्वॉट एनालिसिस कि आप अपनी कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और आपका थ्रेट। We were on this topic. I think there were network issue. Okay. So we were on the topic of the why the business failed, why so many business failed, and what are the reason behind it. So the entrepreneur just need to do the SWOT analysis of the business. ठीक है, SWOT एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर नो कस्टमर ओरिएंटेशन और प्रपोज प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब कस्टमर को चाहिए आम और इमली बेचोगे तो क्या होगा, आपका मार्केट डाउन ही ना होगा आपकी कंपनी का। So what the consumers required, what they need, just try to understand it. Like तुम लोगों को पता होगा कि सबसे पहले ना टूथपेस्ट जो आया था कोलगेट, वो बिल्कुल आपका जनरल और कन्वेंशनल जो व्हाइट कलर का टूथपेस्ट वो आता था, हम लोग उसी से करते थे पेस्ट। पेप्सोडेंट में भी एक वही बस वैसा ही एक सिंगल वेराइटी अवेलेबल था। अभी तुम देखोगे तो कोलगेट में मल्टीपल वेराइटीज आर अवेलेबल। व्हाई? The question is why every toothpaste are used for cleaning the teeth, then why that there are multiple varieties are required? Because there are so many problems with the consumers. Some people have the problem of the whitening teeth, some people matlab yellowish teeth, some people have sensitive teeth, some people have germs in their teeth. So the people's problems are very much diversified. सो इतने डाइवर्सिफिकेशन का काम एक कोलगेट थोड़ी कर देगा, एक टाइप का कोलगेट। सो देयर इज अ कोलगेट विद सॉल्ट, देयर इज अ हर्बल कोलगेट, बिकॉज द पीपल बिलीव दैट हर्बल थिंग्स आर बेसिकली मोर नेचुरल और हर्बल थिंग्स आर बेटर फॉर आवर बॉडी, राइट। सो हर्बल आपके टूथपेस्ट आ गए, फिर उसके बाद जेल आ गया फॉर द रिफ्रेशमेंट। देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड लॉन्चिंग सच काइंड ऑफ वेराइटीज, राइट। Launching such kind of varieties, there are so many reasons because the people demands are varied. तो यहाँ पर आपको कौन से कंज्यूमर के डिमांड पे फोकस करना है वो ध्यान देने की बात है। अगर आपने फोकस नहीं किया, कंज्यूमर की नीड को, डिमांड को समझा ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में आप कोई भी प्रोडक्ट को, सर्विस को ले आओ, बेहतर क्वालिटी का भी, लेकिन आपका सेल एज सच नहीं हो सकता, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। Do you think that why the HMT decline? आप लोगों को पता है हिंदुस्तान मशीन टूल जो है, HMT के वॉच आती थी पहले। आप लोग अपनी मदर से पूछना, अपनी मम्मी से पूछना, HMT का पहले वॉच आता था, HMT का, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों वो डिक्लाइन हुआ, क्या रीजन है? क्योंकि दे वर सेलिंग द कन्वेंशनल टाइप ऑफ द वॉचेस, द टाइटन स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू टाइप, दे इंट्रोड्यूस फास्ट ट्रैक, they introduced Titan में आप लोगों ने सुना होगा Titan Raga, that is a beautiful watch for a woman and it is expensive as such. So basically so many companies are already engaged in doing the innovations all the time. They are introducing something better, something new. But if you will not do such kind of thing, if you are not able to analyze the trend and the demand of the consumers, your company is not going to work for the long time. Now the next one is poor handling of the finance matters. फाइनेंस मैटर्स जो है, आप जो लोन ले रहे हैं या फिर आप जो शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप जो इन्वेस्टर्स हैं आपके, मतलब आप प्रॉपरली एलोकेशन नहीं जानते हो कि फाइनेंस में एलोकेशन कैसे करना है। आपने एडवर्टीजमेंट पे पैसे लगाए नहीं और आपने सारे पैसे जो है वो लगा दिया प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन कितना भी कर लो, उसके लिए कम से कम नॉलेज तो लोगों को चाहिए कि भाई आपका ये फलना प्रोडक्ट मार्केट में आया है। तो ऐसे सिचुएशन में लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आपका प्रोडक्शन हाई था लेकिन डिमांड कम हो गया। सो पुअर एलोकेशन ऑफ द फंड, ठीक है, और फाइनेंशियल मैटर, यानी पैसा लोन लेने नहीं आ रहा है, लोन को ले भी लिया तो एलोकेट नहीं करना आ रहा है, अमाउंट ऑफ लोन का अमाउंट नहीं समझ आ रहा है कि कितना अमाउंट लेना चाहिए लोन में। सो डिलेमा वाले सिचुएशन में आपको फाइनेंशियल मैटर हैंडल नहीं हो रहा है, तो इस रीजन से भी आपका बिजनेस प्लान फेल हो सकता है। अनरीजनेबल टाइम शेड्यूल, यू हैव नो प्रॉपर टाइम शेड्यूल, यू आर नॉट मेकिंग इट प्रॉपर। लोगों के पास टाइम शेड्यूल प्रॉपर नहीं हो तो क्या होगा, चीजें छूटेंगी। आज अगर मान लो क्लास 2 बजे से था, कर आओगे करने 3 बजे, तो क्लास छूट ही ना जाएगा, है ना। सो
प्रॉपरली टाइम शेड्यूल, अनरीजनेबल आपके पास टाइम शेड्यूल है, प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं है टाइम का, और नेक्स्ट है कि प्रॉपर कंट्रोल नहीं है आपके बिजनेस प्लान में, या बिजनेस प्लान जो है वो बहुत इनइफेक्टिव और बहुत ही इनएफिशिएंट बनाया है आपने। तो इन सारे रीजन से आपका बिजनेस जो प्लान है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आई बात समझ में? गोल वैग रख लिया, अनरीजनेबल टाइम का कोई पता नहीं है, अनरियलिस्टिक गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है, कंज्यूमर्स को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, डिमांड डिफाइन नहीं कर पा रहा है, फाइनेंस प्रॉपरली आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉपरली मतलब पैसों को एलोकेट करना नहीं आ रहा है। सो ऑल दीज रीजंस आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द कंपनी और द बिजनेस प्लान। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? यस मैम। क्लियर हो गया? चलिए लेट्स मूव टू आवर टुडे, लेट्स स्टार्ट। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। How the story of this Meesho started, I'm going to explain about that. Okay, so before starting this topic, before starting the success story, I just want from you all that you all knows about Meesho. How many of you know about Meesho? Raise your hand. Means you already heard about this. कितने लोग हो आप लोगों में से जिसने मीशो के बारे में सुना है? Okay. Yes ma'am. I guess so many of you heard about Meesho. So like the other companies like Flipkart, Amazon, this Meesho is also an e-commerce platform, right? It is a platform for selling the product. But what Meesho basically do, let me elaborate, that instead of selling the product, मतलब प्रोडक्ट को सेल करने के अलावा, ठीक है, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग जॉब्स टू द पीपल। मतलब ये जॉब भी दे रहा है किसको, लोगों को। किस तरीके का जॉब दे रहा है ये, कि भाई अगर आप चाहें तो आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं अपने मार्जिन को ऐड करके। जैसे मान लीजिए कोई 500 का प्रोडक्ट मीशो में शो हो रहा है, तो आपने उस 500 के प्रोडक्ट में अपने 200 रुपए मार्जिन को लगा लीजिए, ठीक है। पहले तो उस प्रोडक्ट का फोटो ले लीजिए, उस फोटो को लेने के बाद आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे उस प्रोडक्ट के पिक्चर को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नोन के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, राइट? एंड इफ दोस पीपल, इफ योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स आर वेरी मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, दे विल आस्क फॉर द प्राइस, इसका प्राइस क्या है। मीशो में मान लीजिए इसका प्राइस अगर 500 है, बट यू वांट to sell it for 800, you can add your own margin 300, उसमें ऐड करके 800 रुपए में उस प्रोडक्ट को सेल कर दीजिए। सो इन शॉर्ट, मीशो इज नॉट ओनली अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बट इट इज अ रीसेलिंग प्लेटफॉर्म। तो ये प्रोडक्ट को रीसेल करने का आपको ऑप्शन देता है, लेकिन और यहां तक ये जो प्रोडक्ट जाएगा वो आपके नाम के साथ जाएगा। देयर नोवेयर मीशो इज रिटन ओवर द होल पैकेट, यानी पूरे पैकेट में कहीं भी मीशो का नाम नहीं लिखा होगा, उसमें नाम आपका लिखा होगा कि डिलीवर हुआ है आपको और फलना एड्रेस में डिलीवर किया गया है। सो द नेम which is written, जो नाम लिखा होगा वो आपका नाम लिखा होगा। Now the question is that the cost of the delivery will be charges from you? No, it is not going, they are not going to charge delivery charge, they are not going to take any charges as a delivery charge for reselling purpose। अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है 800 में, आप 800 में उस प्रोडक्ट को सेल कर दीजिए, ठीक है। रेट भी उसमें 800 रुपए ही जाएगा। अगर आपने ऐसे 300 मार्जिन लगा लिया था प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट का रेट होगा दैट विल बी 800 शो होगा उस प्रोडक्ट का रेट, समझ रहे हैं ना। और आपका एड्रेस भी लिखा होगा जहां से आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया, आपके घर का एड्रेस मेंशन होगा, जिसको करना है उसका भी एड्रेस होगा। लेकिन जो चार्ज होगा डिलीवरी का, जो काम होगा वो मीशो अपने तरफ से कराती है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। बट देयर इज अ वन डीमेरिट एज सच व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस कंपनी, दैट इफ द कंज्यूमर डजंट लाइक योर प्रोडक्ट, अगर उनको प्रोडक्ट आपका पसंद नहीं आया, देन दे आर गोइंग टू रिटर्न दैट प्रोडक्ट टू यू।
वो आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे, ना कि मीशो को। अब आप उस प्रोडक्ट को आगे जाके क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, नहीं तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। सो देयर इज सम प्रॉब्लम आल्सो एसोसिएटेड विथ मीशो, बट स्टिल द पीपल आर यूजिंग इट एंड पीपल लव दिस platform because they have multiple options for the apparel and they are selling majority of the fashion related product, मतलब कपड़े, jewelry, artificial jewelry, earrings and so many things you are able to purchase it from Meesho. Yes Arman? मैम एफिलिएट करता है ना मैम? बेसिकली इट इज एफिलिएटेड मार्केटिंग, ठीक है, इसको एफिलिएट करना कहेंगे, जहां पर ये आपको यूज कर रहा है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, इसको कहते हैं एफिलिएटेड, एफिलिएशन आपने सुना होगा वर्ड, एफिलिएटेड मार्केटिंग, ठीक है। सो मीशो जो है आजकल अगर हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट करने की या ऑनलाइन कोई भी कंपनी की शुरुआत करने की, तो ऐसे सिचुएशन में आप घर पे बैठे बैठे ये काम कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर own business by sit comfortably in your house because there is so many option, like you can use the social media, you can start your application, ठीक है। So e-commerce is now in a trend, rather than people going to the physical store, they want to do shopping from the online store. There are multiple benefits of that, even 24/7 अवेलेबल है भाई, पैसा रिटर्निंग का कोई चिक प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल स्टोर से खरीदेंगे ना, अगर मान लो मैंने कि ये कैप भी खरीद लिया फिजिकल स्टोर से, वापस करने जाऊंगी, दे आर नॉट गोइंग टू रिटर्न इट, यस दे आर गोइंग टू एक्सचेंज इट, इफ even in some situation they are not going to exchange it। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है फिजिकल स्टोर के साथ। 8 बजे के बाद गए, शॉप क्लोज। भाई आपका ऑनलाइन साइट जो है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, that is available all the time, you can use it at any time, yes, but the major drawback of the online and offline की अगर मैं बात करूं, तो ऑनलाइन वाला जो सामान है वो 1 मिनट में आपको अवेलेबल नहीं होगा, आपको पोजेशन प्रोडक्ट का एट द टाइम नहीं मिलेगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है? Yes ma'am. We have to wait for 5, 7, 10 days, whatever is mentioned in that. Yes, you will get this product after 10 days, after 20 days, that will be mentioned in that, उसमें आपको वो चीज मेंशन किया हुआ होगा, तो तुरंत से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। फिजिकल स्टोर में ये फायदा है, प्रोडक्ट पोजीशन तुरंत से आपको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। And companies are basically starting the e-commerce and they are generating billions of dollars in the monthly sale in the all across the globe, ठीक है। Nowadays the people are dependent on the online purchasing, it is economical and this Meesho is economical to establish an online reselling services, बहुत economical और ये reselling service इसने provide किया। So let's start with about Meesho, that how this was started. So Meesho is a Bangalore based startup, ये एक Bangalore based startup है और it is built an environment where anybody can establish a business with no financial investment। यानी Meesho एक ऐसा बिजनेस है, उसने दूसरे लोगों को ऑप्शन दिया बिजनेस करने का विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। यानी अगर आप Meesho के थ्रू रीसेलिंग कर रहे हो तो आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस Meesho का प्रोडक्ट जो है वो दूसरे कस्टमर को सेल कीजिए, जीरो इन्वेस्टमेंट में यू कैन डू द रीसेलिंग वर्क एंड इट इज अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप। Okay, the company have more than 20,000 suppliers, they have so many manufacturer and the companies which are basically associated with Meesho, and with that they are selling, they have in more than 500 towns, मतलब 500 से भी ज्यादा टाउन में Meesho ने अपना नेटवर्क फैला लिया है और वहां पर 20,000 से भी ज्यादा सप्लायर्स जो हैं वो Meesho के साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन में लो जो सेलर है उसको 10 से 15% का मनी का मार्जिन मिलता है, ठीक है। उसके अलावा Meesho जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट रीसेल प्लेटफॉर्म है और इट वाज फाउंडेड इन 2015 में, और इनका लगभग कौन कौन से प्रोडक्ट दे आर सेलिंग, the clothing, accessories, the cosmetics item, but yes, I just want to tell you that Meesho is not started selling the branded product, whatever they are selling that is the local one, always remember it. Right now they have that option only. Some of the company who are selling the local branded company, they are starting
started selling in with Meesho. But if we'll talk about the Levi's, if we'll talk about the Tommy Hilfiger, these companies not associated with Meesho right now. But yes, there's so many local manufacturer or local companies are associated with Meesho. Okay, so for purchasing the branded product, still you have to look for Amazon or Flipkart instead of using Meesho. But yes, the small things like earrings, accessories, jewelry set, the sarees and clothing areas, they have a good option for that. Okay. नेक्स्ट वन इज मीशो का भी लेटेस्ट अगर न्यूज देखा जाए 2021-29 का, सो द मीशो स्टार्टेड इंटीग्रेटेड विद द ग्रोसरी आर्म एज वेल. सो नाउ वी ऑल नो दैट द फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स, Amazon, बिग बास्केट, दे ऑल स्टार्टेड सेलिंग. ग्रोफर्स वर तो पहले से ही था, दैट वाज बेसिकली फॉर सेलिंग द ग्रोसरी आइटम्स, बट विद इन द कोविड पीरियड Amazon and Flipkart basically took that idea of starting the grocery. And they started, right? Even my parents, they are also basically giving orders from Flipkart for the grocery. So this is now the situation. So Meesho is also looking over this opportunity and they want to start the grocery offerings to the people. ठीक है? In 2021 नवंबर की बात करें तो Meesho ने एक एनुअल मीशॉप प्रोग्राम स्टैब्लिश किया था. दैट इज फॉर प्रमोटिंग द स्टॉक ओनरशिप. स्टॉक ओनरशिप के लिए, वर्कर्स के लिए, सीनियोरिटी के लिए, इन लोगों के लिए इन्होंने एक एनुअल मीशॉप प्रोग्राम जो था वो स्टैब्लिश किया था. नवंबर 10 की बात करें अगर हम 2021 की, तो ये बस एक ऐसा इंडियन स्टार्टअप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का था जो टॉप 10 मोस्ट डाउनलोडेड नॉन गेमिंग एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड में इसका बेसिकली पोजीशन आ गया. मतलब इतना ज्यादा इसके एप्लीकेशन को लोगों ने डाउनलोड किया. आप सोचिए कि ये इंडियन स्टार्टअप में नंबर, आपके 10 स्टार्टअप जो नॉन गेमिंग के अलावा जो आपके एप्स हैं उसमें इसका रैंक विद इन 10 आ गया. सोच के देखिए आप. एंड मीशो में लगभग 57 मिलियन डाउनलोड्स हो चुका है इसके ऐप स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर से. ठीक है. So the Meesho started basically reputed, and it is not only the Indian statistics or data, it is about the whole world data. पूरे वर्ल्ड के डेटा के हिसाब से इनका पूरे टॉप 10 नॉन गेमिंग एप्लीकेशन के अलावा इसका डाउनलोडिंग हुआ. तो ये कुछ न्यूज था मीशो से रिलेटेड. अब इसकी कहानी शुरू करते हैं कि भाई मीशो को स्टैब्लिश किया किसने, हु स्टैब्लिश मीशो. सो मीशो बेसिकली स्टैंड्स फॉर मेरी ई शॉप. इसका नाम क्या है? मेरी ई शॉप, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप. इस नाम से इसको मीशो रखा गया. मीशो का मतलब यही है, मी एम से यहाँ पर ME से मेरी, ई से इलेक्ट्रॉनिक और SHO से शॉप. तो मीशो का मतलब है मेरी ई शॉप. ठीक है, माई शॉप. अब ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? इट वाज एस्टैब्लिश बाय द IIT दिल्ली स्टूडेंट्स. IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स. नाउ द अगेन द क्वेश्चन इज गोइंग टू राइज कि मैम सारे स्टार्टअप्स IITians ही करते हैं क्या? IITians एंड IIM वाले. ठीक है. तो यहाँ पर विदित अत्रे और संजीव बर्नवाल जो हैं, इन्होंने 2015 में, जो दोनों IIT दिल्ली से पास आउट हैं, इन्होंने ये ऐप की शुरुआत की. ये एक पहला सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म था एक स्मॉल बिजनेस के लिए, इंडिविजुअल के लिए, जो ट्रेडिंग कर सकता था यहाँ से बिना कोई इन्वेस्टमेंट के. 2016 में Y Combinator selected 3 Indian companies and Meesho was one of them that targets tier 2 and 3 towns and claim having more than 17 million resellers and 15 million of them are women. मतलब Y Combinator, that is a basically organization, they selected 3 इंडियन कंपनी में से मीशो का भी एक नाम था, क्योंकि इसने क्लेम किया था कि इनके पास लगभग 17 मिलियन रीसेलर हैं. ठीक है, और 15 मिलियन उसमें से 15 मिलियन जो है उसमें से वो women है अकॉर्डिंग टू जून 2021. So we can say now that they provided the job opportunity to the people as well, and they have more than 60,000 suppliers. They claimed about it. ठीक है. And what Atre said
what he said that मैं खुद एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूं और मैंने देखा है कि छोटे बिजनेसेस हमारे चारों तरफ, मैं जहां मेरी अपब्रिंगिंग हुई है मैंने चारों तरफ छोटे छोटे बिजनेस को ज्यादातर देखा है। और मैं इन सब छोटे छोटे बिजनेस को, अब इन्होंने क्या किया ना, लोकल शॉपकीपर्स को अप्रोच किया है। तो जो छोटे मोटे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं उन सबको जो मतलब सेल करते हैं फिजिकली मार्केट में प्रोडक्ट को, उन सबको इन्होंने टारगेट किया, वो सारे सप्लायर्स को। और लगभग अत्रे ने ये चीज कहा कि मैंने जो आसपास देखा मैंने उसको सबको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया मीशो के थ्रू। ठीक है। एंड what he said that in India there are about 500 million people who use WhatsApp regularly, and the number of people who are buying from e-commerce platform is still roughly about 100 million. मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते। उसका एक रीजन ये भी है कि Indian people, so many people don't have a smartphone. ठीक है, स्मार्टफोन है ही नहीं उनके पास। जब स्मार्टफोन नहीं है तो आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द नेक्स्ट ई कॉमर्स बायर ऑनलाइन इज वेरी लार्ज। नहीं तो अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो ई कॉमर्स का इससे भी कई ज्यादा होगा अगर बहुत सारे लोग जो हैं जो स्मार्टफोन यूजर्स नहीं है, दे विल स्टार्ट यूजिंग स्मार्टफोन्स। ठीक है, so what they are basically dealing with, they are basically dealing with the fashion products in short. And Vidit Atre, he is a founder and CEO, and earlier he was doing job in InMobi, and after that he leave the job and he started the journey of the startup. And another person, the Sanjeev Barnawal, he is a co-founder, and earlier he was also doing job in the Sony Corporation. He also quit the job for the Meesho. They both were batchmate, मतलब ये दोनों batchmate मतलब एक batch में थे 2008 से 12 तक में। They both were batchmate and came up the intending to build the platform, and with the help of the MSME, micro, small and medium enterprises, they basically established this online social commerce platform. ठीक है, so earlier it was the Fashioneer. जब इन्होंने स्टार्ट किया था मार्केट ना, तो इनको मैं बताती हूँ इन्होंने क्या किया था। they started the something other before Meesho. Fashioneer नाम से इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिजनेस में क्या करते थे ये कि ये जाते थे मतलब वैसे आसपास के लोकल शॉप पे, और ये कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से डिलीवरी करवाते थे कंज्यूमर के घर तक प्रोडक्ट को। मतलब कोई कंज्यूमर आया, उनको प्रोडक्ट पसंद आया तो उसको डिलीवर कराया। बट दिस मॉडल वाज नॉट वर्किंग। ये मॉडल बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था क्योंकि ऑफलाइन तरीका जो था ना, मतलब ये जो ऑफलाइन तरीका था ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं था। द पीपल वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो लेटर ऑन व्हेन दे सॉ दैट दिस बिजनेस मॉडल Fashioneer is not working, then they turned it into the Meesho, where the shop market we can shop the market, we can purchase the product 24/7, 365 days. So the lackness of the offline store, he understood very clearly that why Fashioneer is not working. So he started basically introducing the new model that was Meesho. I guess clear हो गया। And Meesho was totally funded by $515.2 million. That was basically the funding round. They got so many investors as well. Okay, so what is the story of Meesho? That is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay, so how was it? कैसा था? How was it? अच्छा था मैम। But the story was basically related with the new innovation that was done, that they started doing the reselling. Resellers की जरूरत पड़ी इन्हें। Otherwise, the story was not as such effective, like that the founder was very much indulged in the problem, and after that they started this business. There is no such kind of information given about the founder, that how he started the business. But who started? I already told you, Vidit Atre, he started this business. And what was the things and that what kind of product they started selling earlier, that was Fashioneer, and then they converted into the Meesho. So all those information I gave you, but the information related with the founder, that was not as such given. Okay, but maybe there is a craving of the entrepreneurship that leads to start the new business, because both were settled in the good firm, good companies, but
both quit and they started this business. So we can say the craving and the risk taking, this is the reason to start this online platform Meesho. So I think this story is clear to all of you. This is clear to all of you. Okay, so see you all in the next class. Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay.